We have already discussed about Plasmodium vivax. Now we will be discussing about Plasmodium falciparum. Falciparum, as I told you, the ring size is small of falciparum. Therefore, it can enter inside the internal capillaries, and in the peripheral blood smear, these features are not seen. Only ring stage is seen, and then the release is seen in the peripheral blood smear. The difference in the ring is more than one ring is present inside the RBC, and the ring also shows some characteristic feature, that is two nucleus and two cytoplasm like this. It is known as binucleate, bipolar. If both the nucleus is present in one pole and the cytoplasm like this, it is known as binucleate, unipolar. If the cytoplasm fuses with the RBC membrane, it is known as Acol formation. After this, it will show amoeboid stage in the internal capillaries, then rosette stage in the internal capillaries, and then it will form its own malarial pigment along with undigested RBC, that we call it as hematine globin pigment. In case of Plasmodium vivax, it is known as Schuffner's dot. In case of Plasmodium falciparum, it is known as Maurer's dot, and then again release is seen. Okay, after this the same release is seen, and once it is released, the merozoites, it will go and infect the RBCs, and the cycle will go on. Whenever it is released, the RBC releases the merozoites. Pyrogens are also released in the blood. These pyrogens then cause febrile paroxysm. This febrile paroxysm consists of cold stage, hot stage, and sweating stage. The basic difference between this erythrocytic zygogony in PV and PF is ring, that is one ring per RBC, more than one ring. Size of the ring 2.5, size of the ring is 1.5. The release, this Plasmodium vivax, it forms 12 to 24 merozoites. Falciparum, it forms 8 to 24 merozoites. और ये जो फेब्राइल पैरोक्सिज्म है, इसका रिपीटेशन आवर इज 48 आवर्स फॉर बोथ. 48 मतलब होता है टर्शियन. ओके, तो इसको पीवी को भी बोला जाता है टर्शियन, पीएफ को भी बोला जाता है पर्शियन. सिंस जो फैल्सिपेरम है वो इंटरनल कैपिलरीज में चला जाता है, इसीलिए ज़्यादा डेंजरस है इन कंपेयर टू वाइवैक्स. इसलिए वाइवैक्स को बोला जाता है बेनाइन टर्शियन. बेनाइन मतलब होता है लेस डेंजरस, और टर्शियन मतलब होता है 48 आवर्स. इसको बोला जाता है मैलिग्नेंट टर्शियन. इट कैन कन्वर्ट इनटू, it is more dangerous and it can form malignancies. It is known as malignant tertian. Tertian means 48 hours. ठीक है, तो this particular phase that occurs in the RBC is known as erythrocytic zygogony. Since this erythrocytic zygogony was studied by Golgi, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो गोल्गी बोला जाता है, और गोल्गी नाम के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इस साइकिल को स्टडी किया था, इसलिए इसको गोल्गी साइकिल भी बोला जाता है. ठीक है, जब ये रिपीटेड बहुत बार हो जाता है, 4 से 5 बार ये साइकिल हो जाता है, देन सम ऑफ द मीरोजॉइड्स इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग आउट और कन्वर्टिंग इनटू और attacking a new RBC, they convert into gametocyte inside the RBC. This phase is known as the third phase, that is gametogony. In this gametogony, two types of gametocytes are formed. I'll tell you about Plasmodium vivax as well as Plasmodium falciparum. वाइवैक्स का जो गैमेटोसाइट है, अगर ये आरबीसी है तो ये आरबीसी के साइज का ही रहता है गैमेटोसाइट, लाइक दिस. इट इज हैविंग साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस लाइक दिस. ठीक है, अलॉन्ग विथ सम ऑफ द मलेरियल पिगमेंट. एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, दैट इज शेप इज ओवल शेप का होता है.
और इसमें साइटोप्लाज्म अलाइंड होगा, सिस्टमैटिक होगा अलॉन्ग विद द मलेरियल पिग। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं मेल गैमीटोसाइट, ठीक है, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोसाइट। मेल गैमीटोसाइट एंड दिस इज, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोसाइट, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं मेल गैमीटोसाइट। फीमेल गैमीटोसाइट में साइटोप्लाज्म जो है वो डिफ्यूज रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। मेल में साइटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज रहेगा। फीमेल में न्यूक्लियस भी थोड़ा डिफ्यूज रहेगा, मेल में न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये दोनों कहाँ होते हैं? आरबीसी के अंदर। जो बड़ा होता है उसको फीमेल, जो छोटा है उसको मेल गैमीटोसाइट। इन केस ऑफ वाइवैक्स, इन केस ऑफ फैल्सीपेरम the gametosite looks like banana shape. Is it visible? Like this, banana shape gametosite। और ये जो पार्ट है दिस इज आरबीसी, अनडाइजेस्टेड आरबीसी का पार्ट इसके साथ अटैच रहता है। साइटोप्लाज्म डिफ्यूज्ड है और ये रहा न्यूक्लियस। तो जो बड़ा है उसको बोलेंगे फीमेल गैमेटोसाइट और जो छोटा रहेगा उसको बोलेंगे मेल गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट में साइटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज रहेगा और न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज रहेगा एंड इट पार्ट ऑफ आरबीसी इज अटैच्ड। जो अनडाइजेस्टेड आरबीसी है वो अटैच्ड पाया जाता है। दिस इज गैमेटोसाइट ऑफ फैल्सीपेरम, जिसको बोलते हैं बनाना शेप गैमेटोसाइट, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट। और ये है फीमेल गैमेटोसाइट ऑफ वाइवैक्स। मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट ऑफ वाइवैक्स, फीमेल एंड मेल ऑफ फैल्सीपेरम। ना ये जो गैमेटोसाइट हैं दे आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड, पेरिफेरल ब्लड में रहते हैं। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम they can live in the peripheral blood for 10 to 12 days and in vivax 4 to 5 days, and they wait there to be picked up by the Anopheles mosquito. Here it is, this particular size also varies. I'll give it to you in pathogenesis part. Okay, now what happens when this kind of morphological form, that is gametocyte, this is gametocyte, is carried by female Anopheles during its blood meal to a patient that is harboring these morphological feature in peripheral blood. तो ये क्या होता है कि मेल या फीमेल, जो भी मेल एंड फीमेल, दे बोथ get entered here. The male, it undergoes binary fission और एक से ज़्यादा मेल, दैट इज 6 to 7 मेल बन जाते हैं फ्रॉम वन मेल गैमेटोसाइट एंड द फीमेल गैमेटोसाइट वन का वन ही। आफ्टर दैट दीज आइदर इट मे बी फैल्सीपेरम और वाइवैक्स, दोनों का फेट यही है। मेल गैमेटोसाइट चेंज करेगा अपना मॉर्फोलॉजी टू सर्कुलर फॉर्म, फीमेल भी टू सर्कुलर फॉर्म। उसके बाद मेल गैमेटोसाइट बाइनरी फिशन से एक से ज़्यादा बन जाएंगे, 6 to 8, फीमेल एक ही रहेगी, दिस इज फीमेल, दीज आर मेल गैमेटोसाइट्स। After this, these male gametocytes, they become pointed like this, like the structure, and they become flagellate, like a sperm of the humans. इस तरीके anyone, all of them will approach and anyone will go inside and fuse the nucleus. So from one end it becomes 2n and this form is known as zygote. और ये सब कहाँ हो रहा है? मिडगट ऑफ फीमेल एनाफिलस। जाइगोट हो जाएगा, जाइगोट से इट विल फॉर्म oocyst, फ्रॉम oocyst इट फॉर्म्स ookinete, और सबका स्ट्रक्चर कैसा है? गोल, और इसके अंदर डिवीजन चल रहा है। फ्रॉम ookinete आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड इज ओवर, इट अगेन फॉर्म्स अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म दैट इज स्पिंडल शेप हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रोबोसिस ऑफ फीमेल एनाफिलस, प्रोबोसिस ऑफ फीमेल। ये जाइगोट बना 2n, जाइगोट से oocyst, oocyst से ookinete, ookinete से, ये सब आपके मिडगट में हो रहा है।
एंड देन इट बिकम्स स्पोरोजाइट। और जब ये चेंज करता है अपना मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म तो ये कहाँ जाता है, प्रोबोसिस। और एक आया था खूब सारे ऐसे स्पोरोजॉइड्स बन जाते हैं, और ये बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स जो है मॉस्क्यूटो के प्रोबोसिस में रहते हैं। जहाँ से बाइट करता है ना उसके नीचे एक ग्लैंड रहता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। और जब भी ऐसा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कैरी करता हुआ फीमेल एनाफिलस जो है वो बाइट करेगा ह्यूमन होस्ट को, तो इट विल ड्रॉप दिस फॉर्म either inside the skin or outside the skin, and the particular this it will enter the liver cell, it will enter the RBC, from RBC it will form gametocyte, and again this will be carried. So this first stage is known as pre-erythrocytic, that occurs outside the RBC. The difference between pre-erythrocytic, Plasmodium falciparum, incubation period 6 days. It completes this particular cycle in 6 days. Vivax completes in 8 days. Incubation period, and then number of merozoids, falciparum में 30,000 है, Vivax में 10,000 है. इसका साइजोंट साइजोंट मतलब ये लीवर का जो साइज है जो बर्स्ट होगा, साइजोंट साइज 60 म्यूएम है, इसका 45 म्यूएम है. ठीक है, तो दिस इज होल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम falciparum. First is pre-erythrocytic cyzogony, second is erythrocytic cyzogony, third stage is gametogony. इसके अलावा फोर्थ स्टेज भी होता है. वो फोर्थ स्टेज हर एक पैरासाइट में नहीं होता है. दिस फोर्थ स्टेज इन प्लाज्मोडियम falciparum it is absent, प्लाज्मोडियम vivax it is present. This is known as post erythrocytic साइकिल, या कई जगह इसमें एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल भी लिखा गया है. लेमैन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है रिलैप्स. तो ये रिलैप्स वाइवैक्स में दिखता है, falciparum में रिलैप्स नहीं रहता है. ये रिलैप्स कैसे होता है, जब लीवर के अंदर आता है स्पोरोजॉइड, अपना मॉर्फोलॉजी चेंज करता है और डिवाइड करता है, खूब सारे मीरोजॉइड्स लिबरेट होते हैं. ये मैक्रो मीरोजॉइड्स जो बड़े वाले होते हैं वो वापस आके लीवर सेल को फिर से इन्फेक्ट करते हैं. इनमें से कुछ माइक्रो मीरोजॉइड जो हैं वो लीवर सेल में अंदर जा कर के छुप जाते हैं. दे रिमेन देयर हिडन फॉर ईयर्स टुगेदर, और जब भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी पेशेंट की वो फिर से अपना वापस से साइकिल शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये जो छुपे रहते हैं हिडन, इनको बोला जाता है हिप्नोजॉइट. ठीक है, इसको आप यहाँ बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा. हिप्नोजॉइट. और जब भी पेशेंट का इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज होगा, ये अगेन रिएक्टिवेट होगा, वापस डिवाइड करेगा, वापस साइजॉइड बनाएगा, मीरोजॉइड बनाएगा और फिर से इन्फेक्ट करेगा. और जो मीरोजॉइड बनेंगे छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, छोटे वाले RBC में आ जाएंगे, बड़े वाले वापस लीवर को इन्फेक्ट करेंगे. तो दिस इज अबाउट प्लाज्मोडियम के साइकिल्स, द 4 साइकिल्स ऑफ द 4 phases, लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ द प्लाज्मोडियम. Now talking about pathogenesis. पैथोजेनेसिस में फेब्राइल पैरोक्सिज्म कब दिखता है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में आपको फेब्राइल पैरोक्सिज्म दिखेगा, जिसमें कि कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज है और स्वेटिंग स्टेज है. कोल्ड स्टेज जो है वो है 15 मिनट से 1 घंटे का होता है. हॉट स्टेज 2 to 6 आवर्स, जिसमें फीवर, हेडेक एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग. फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग. और जो स्वेटिंग स्टेज है इसके बाद फिर अगेन जब वो पायरोजन रिलीज होगा ये वाला स्टेज आपका होगा. इंक्यूबेशन पीरियड फेब्राइल पैरोक्सिज्म का 8 to 40 है. सबसे कम falciparum में होता है, सबसे ज़्यादा मलेरिया में होता है और बीच में वाइवैक्स है. मतलब 8 days falciparum का, मलेरिया का 40 days है, इसका 6 to 12 days जो भी. रिलैप्स अकर्स आइदर इन 24 वीक्स, 24 वीक हफ्ते में भी हो सकता है, दैट इज़ आफ्टर 6 months, या 5 साल बाद भी हो सकता है, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी कंडीशन ऑफ द होस्ट. और ये रिलैप्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में और ओवेल में दिखता है. falciparum और मलेरिया में आपको रिलैप्स नहीं दिखेगा. प्लाज्मोडियम falciparum, सिंस द रिंग साइज इज स्मॉल, इट इज़ नोन टू कॉज सेरिब्रल मलेरिया. इसमें क्या दिखता है, हाइपरपायरेक्सिया, तेज फीवर, कोमा एंड पैरालिसिस, एज वेल एज एल्जिड फीवर भी बोला जाता है इसको, और सेप्टिसेमिक पेशेंट अंडरगो सेप्टिसीमिया.
जो आरबीसी बनता है, दिस इज अनदर पैथोजेनेसिस, जो आरबीसी है जिसके अंदर पैरासाइट हार्बर करता है ड्यूरिंग एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इट बिकम्स डिफॉर्म्ड एंड स्टिकी एंड इट adheres to the capillary endothelium. This may cause anoxic damage, it may cause edema, it may cause inflammation. This parasite also causes algid malaria, जिसमें कि patient undergoes surgical shock, cold clammy skin and hypotension that leads to peripheral circulatory failure. इसमें आप जो पैरासाइट है, इट में इन्फेक्ट द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें पेशेंट सफर्स फ्रॉम वोमिटिंग, डिसेंट्री और डायरिया. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि कई बार शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, दैट इज ब्लैक वाटर फीवर. वॉट इज ब्लैक वाटर? ब्लैक इज द कलर, दैट इज ब्लैक कलर, काले रंग का. वाटर इज यूरिन. क्योंकि ये पैरासाइट आरबीसी में इन्फेक्ट करता है, तो जिस आरबीसी में ये हार्बर करेगा, पूरा साइजोगोनी दिखाएगा, वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और इस तरीके से बहुत सारे आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं और ये आरबीसी यूरिन से निकलते हैं. इसलिए ये आरबीसी, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रॉयड आरबीसी, द यूरिन का कलर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और पेशेंट को फेब्राइल पैरोक्सिज्म के कारण फीवर भी है. इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है ब्लैक वाटर फीवर. This is actually malarial hemoglobinuria, that is destruction of the hemoglobin part. In Plasmodium falciparum, जिसमें रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, अगर पेशेंट को बार बार falciparum का इन्फेक्शन हो रहा है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट होता है विथ क्विनाइन, द पेशेंट shows the symptom of dark black urine. This may be due to intravascular hemolysis, hemoglobinemia or hemoglobinuria. Another pathogenesis is the patient having G6PD deficiency. G6PD की deficiency जिस patient को होती है वो resistant होते हैं, because this is one of the marker of for the malarial parasite के लिए एक marker का काम करता है. The patient, since RBC is destroyed, the patient becomes anemic. कौन सा anemic है? Hemolytic, normocytic, normochromic anemia. This is due to destruction of RBC, the parasite that harbors the RBC, and it also affects the autoimmune mechanism as well as the formation of new RBCs, that is erythropoiesis is also decreased. This parasite also shows splenomegaly, that is enlarged and congestion, enlarged सॉफ्ट होता है, एनलार्ज हो जाता है स्प्लीन, कंजेशन दिखता है और डार्क दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पिगमेंट. बट ये इनिशियल स्टेज में सॉफ्ट रहेगा, बट अगर ये बार बार हो रहा है और पेशेंट का जब लेटर स्टेज है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है, देन इट शोज सेल्युलर हाइपरप्लेजिया एंड दिस स्प्लीनोमेगाली दैट वाज सॉफ्ट इनिशियली, इट बिकम्स हार्ड ड्यू टू फाइब्रोसिस. In cerebral malaria, that is caused due to Plasmodium falciparum, CNS is infected, congestion of meninges is seen and brain is seen, occlusion of capillaries in the brain is seen, malarial granuloma around occluded blood vessels is seen. Root, पहला प्राइम रूट इज मॉस्किटो बाइट. अगर मॉस्किटो बाइट होगा तो कहाँ से चालू होगा? ये लीवर में इन्फेक्ट करेगा, लीवर से आरबीसी में इन्फेक्ट करेगा और फिर ये गैमेटोगोनी करेगा. बट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है किसी पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम प्लाज्मोडियम, अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है और किसी होस्ट को देता है तो कहाँ से शुरू होगा? आरबीसी. लीवर पार्ट विल बी एब्सेंट. इन्फेक्शन ऑफ द लीवर विल बी एब्सेंट, इट विल इन्फेक्ट द आरबीसी एंड देन गैमेटोगोनी. ठीक है, दैट आई टोल्ड यू कि अगर एक बार आरबीसी में एंटर कर जाता है तो वो वापस लीवर में एंटर नहीं कर सकता. ये जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है दैट कैन बी ड्यू टू शेयर्ड सिरिंजेस, स्पेशली सीन इन ड्रग एडिक्ट्स. इट कैन बी सीन इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन इफ डोनर इज इन्फेक्टेड एंड कॉन्जेनाइटल मलेरिया इफ द मदर इज इन्फेक्टेड. पर्सन्स हैविंग, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको पता होने चाहिए. पर्सन्स हैविंग डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन दैट इज FIA एंड FIB, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरियल पैरासाइट. सिकल सेल पेशेंट, क्योंकि आरबीसी
सिकल शेप की हो जाती है तो आरबीसी के अंदर जगह नहीं रहती पैरासाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसीलिए सिकल सेल पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। HbF दैट इज़ न्यूनेटल या फीटल हीमोग्लोबिन, उसमें वो भी इट प्रोटेक्ट्स, अगर HbF है तो ये प्रोटेक्ट होते हैं। माल नरिश्ड एंड आयरन डिफिशियंसी पेशेंट, दे आर ऑल्सो सेफ फ्रॉम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। लैब डायग्नोसिस के लिए स्लाइड में आप पेशेंट का प्रिक करेंगे, पेरिफेरल इस तरीके से प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद आप 2 स्मीयर बनाएंगे, एक को बोलते हैं थिक स्मीयर और एक जो आप लोग बनाते हैं हमेशा टंग शेप का, दैट इज थिन स्मीयर। थिक स्मीयर एंड थिन स्मीयर, ठीक है। थिन स्मीयर में आपको पैरासाइट के पेरिफेरल ब्लड में जो जो स्टेजेस हमने पढ़े थे, दैट इज रिंग स्टेज, एमीबॉइड स्टेज, रोजेट स्टेज, ये सारे स्टेजेस दिखाई देंगे। और जो ये है आपका थिक स्मीयर, इसमें आपको स्पीसीज चेक करने के लिए दिखेगा। ये मिला मीन्स प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम में 5X है कि फैल्सिपेरम है कि ओवेल है, मलेरिया है, उसके लिए आपको थिक स्मीयर देखना पड़ेगा। थिक स्मीयर में आपको क्या दिखेगा, अगर बनाना शेप दिख रहा है गैमेटोसाइट, या आपको एक आरबीसी के अंदर 2-3 रिंग दिख रहे हैं तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अगर आपको ओवल शेप का गैमेटोसाइट दिख रहा है और रिंग साइज जो है वो 2.5 म्यूएम दिख रही है तो ये आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहेगा। ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फेब्राइल पैरोक्सिज्म में जब पहला स्टेज चलता रहता है, दैट इज कोल्ड स्टेज और शिवरिंग स्टेज, उस समय लेना है आपको, क्योंकि उस समय सारे पैरासाइट जो हैं वो पेरिफेरल ब्लड में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लिबरेट आउट होते हैं, या आरबीसी से लिबरेट आउट होते हैं। और फिर इनका हम जब स्मीयर बना लेते हैं तो स्मीयर बना करके इनको हम स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद जैसा हमने ट्यूबरक्लोसिस के लिए पढ़ा था, यहाँ से ऑयल इमर्शन लेंस रख करके और इस तरीके से हम इसको देखेंगे और पेशेंट को अकॉर्डिंगली 1+2+3+ कर लेंगे, ठीक है। मतलब 1 से 1 या 2 पैरासाइट है 100 फील्ड में, 10 से ज़्यादा है 100 फील्ड में, और 10 है 10 या 10 से ज़्यादा है पर 10 फील्ड या पर फील्ड तो 3+ देंगे। इसके अलावा एलाइज़ा किया जा सकता है, रेडियो इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं। एलाइज़ा में हम इम्यूनिटी चेक भी कर सकते हैं, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज़ IgM, IgG, IgA। ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन दिया जाता है, दैट इज़ अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। स्टैट दिया जाता है, मीन्स जैसे ही पेशेंट आपको पॉजिटिव मिला तुरंत आपको 600 mg स्टैट देना है, फिर 300 mg आफ्टर 6 आवर्स, देन अगेन 300 mg डेली फॉर 2 days. Then again you have to check for the presence with this thick and thin smear, and then accordingly we can repeat it. So this is all about Plasmodium. Thank you.